पास में इतना पैसा है, इनको खुद पता है, इनको खुद ही पता नहीं कि इनके पास कितना पैसा है, उसका बता दो। इससे कि हम भी उस नाम के पार उतर जाए। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी वैचारिक दृष्टि बहुत अच्छी होने के कारण मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम। He is very amicable, honest, hardworking, dedicated and helpful teacher. और उस स्वस्थ मानसिकता के कारण विद्यालय की जितनी भी गतिविधियां हैं बहुत अच्छी तरीके से चलती है। It's with great simplicity, and I believe it is a great day. Mr. Shyamlal Mehta, KVS, on 22nd August 1987, and he first worked at KV number 1, Ahmedabad, and he continued working there till 3rd of November 1992. Thereafter, he joined KV number 1, Udaipur on 4th November 92 to 7th April 2003. After that, he joined for some time in KV number 2, and from that school, he came here as a PGT teacher, promoted from PGT to PGT, and he gave his very valuable services in this school since 13/5/13, and today he is retiring. So I believe to have lived such a great life in this school and give valuable services, it itself is a very big thing. And today he is retiring, we all are very happy, where at the same time we are also missing one of the great teachers. So today we're going to talk about it. Now, my dear children, to begin with the program, I first invite the student Soumya Gautam of class 12A, who wishes to express her views about her teacher, so I call Soumya Gautam. मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। Senior most teacher of our school. If talking about the sir's temperament, sir is one of the best human being you will ever meet in your life. He is very amicable, honest, hardworking, dedicated and helpful teacher. He is the rarest kind of teacher that you find by chance. We are very lucky that we got to be taught by a teacher like him, who always support his students, taught them principles of life and always guide them on right path. We cannot express the brilliance of a teacher like him in words. Sir, we all are really thankful of the all dedicated service you have given, and in your honor, we would like to present a short poem on you. Held in high regard, for he maintained his calmness, though sometimes life was hard. Our class proved not the best in school, yet he made us take the notes. He never chose to play the fool, that's why he got our vote. When mathematics had been taught, we really learned a lot. He brought tremendous thought, so never on the spot. Each question asked brought his reply. His wisdom proved his worth. He knew the value X and Y for anything on the earth. So Mehta sir, we will not forget that you taught us all we knew, and that's the reason we are on the stage. If not for you, where would be? Would be up the creek? For mathematics is life's key, if harmony you seek. Thank you, have a nice day.
स्टूडेंट पर स्काउट क्लब ग्रो ये स्काउट क्लब ग्रो इस रेफरेंस में किए हैं, ये इस विद्यालय के रेफरेंस में स्काउट क्लब ग्रो की है, क्योंकि ये उदयपुर शहर का एक बेहतर विद्यालय है। यहाँ पे सारे स्टूडेंट बेहतर है, सारे शिक्षक साथी बेहतर है, ईच एंड एवरीथिंग इज बेस्ट। ये बेहतर जो है इस साल के परिणाम देख लीजिए, बहुत ही अच्छे रहे। इसलिए रहे हमारे प्रिंसिपल साहब के अथक प्रयासों के कारण, हर अध्यापक के अथक प्रयासों के कारण, विद्यार्थियों के अथक प्रयासों के कारण, सभी अथक प्रयास किए, उसके कारण बेहतर रिजल्ट था। इस बेहतर परिणाम ने हमारे विद्यालय को एक पहचान दी। तो पहचान बनाने के लिए हमको बहुत अथक प्रयास करने होते हैं, कंटिन्यूस प्रयास करने होते हैं। एक दिन के प्रयास से कोई भी जीवन बेहतर नहीं बनता है। तो हमारी पहचान, हमारा बेहतर कार्य होना चाहिए, जो कि परफॉर्मेंस में हमारी बेस्ट होनी चाहिए, उसके लिए प्रयास करना है। आप जीवन में कुछ भी पाए, चाहे खिलाड़ी बने, चाहे शिक्षक बने, चाहे डॉक्टर बने, बिजनेसमैन बने, कोई भी कार्य हो आपके जीवन में, आपका वो कार्य श्रेष्ठ होना चाहिए। उस शहर में आपकी आइडेंटिटी, उस कार्य से पहचान होनी चाहिए। बिजनेस में भी कोई भी प्रोडक्ट बनता है, जब वो अच्छा होता है तो उसकी पहचान बनती है, अगर खराब होता है तो उसकी पहचान खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को, सभी को अपने लाइफ में अपनी पहचान अपने बेहतर कार्यों से करनी है। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि हम कैसे बेहतर कार्य कर सकते हैं, एक दिन के लिए नहीं सोचना है। जैसे ही लगता है कि हम जीत पड़े हैं, पुनः उठ के उस कार्य के लिए प्रयास करें। तो जीवन में आप आगे से आगे बढ़ते जाएंगे, बेहतर जीवन होगा, सुंदर भविष्य होगा, आप लोगों का उस कार्य के कारण नाम होगा, विद्यालय का नाम होगा, आप लोगों के परिवार का नाम होगा। एक और चीज ध्यान रखनी है आप लोगों को, विनम्रता। जीवन में दो लोगों के साथ में बहुत ही विनम्रता से व्यवहार कीजिए, एक अपने माता पिता के प्रति और एक आपके शिक्षकों के प्रति। कई बार देखते हैं कि बच्चा एग्रेसिव हो जाता है, किसी भी शिक्षक के सामने कुछ बोलने लग जाता है जो अच्छा नहीं लगता है, शालीनता नहीं प्रदर्शित करती है। ऐसे ही कुछ बच्चे हो सकता है अपने माता पिता के सामने भी ऐसे बोलते हों, क्रूरता से बोलते हों, तो उसको नहीं बोलना है। तो आप जीवन में बहुत आगे बढ़ें। केवल इन्हीं किसी संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी का आभार, सभी का धन्यवाद। केंद्रीय विद्यालय संगठन की एक परंपरा है, जो शिक्षक साथी हमारे विद्यालय को, केंद्रीय विद्यालय संगठन को ज्वाइन करता है, अपने जीवन की शुरुआत करता है। एक दिन ऐसा आता है कि जब वो अपने इस जीवन को सफलतापूर्वक पूर्ण करके यहाँ से हमें बहुत कुछ दे करके, उनके आशीर्वाद, उनका ज्ञान, उनकी विद्वता, उनके संस्कार, ये सभी हमारे लिए ग्रहणीय होते हैं, हमें उन्हें ग्रहण करना चाहिए। सर ने अभी अभी आपको जो बातें बताई हैं, वो बातें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। हमारे लिए विद्यालय में आकर के शिक्षा ग्रहण करना महत्वपूर्ण है, लेकिन आपके अंकों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके संस्कार, जो हमें श्यामलाल मेहता सर में निश्चित रूप से देखने के लिए मिलते हैं। सर एक बहुत ही विनम्र स्वभाव के व्यक्ति हैं, कभी भी मैंने सर को गुस्सा करते हुए नहीं देखा, सहयोग करते हैं, कोऑपरेटिव मूड में रहते हैं। कभी हमारे संस्कार जो है वो कई बार जो आपकी विद्वता है, आपके अंक जो काम नहीं बना पाते हैं, वो काम हमारे संस्कार कर जाते हैं। तो हम श्यामलाल मेहता सर के जीवन से, उनके ज्ञान के साथ, जो गणित उन्होंने आपको पढ़ाई है उसके साथ हम उनके संस्कार भी ग्रहण करना चाहेंगे और जीवन में वो स्वस्थ रहें, अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा समय बिताएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद। मेरे बच्चों, इनका जीवन विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देना, शिक्षण कार्य करना, ये उनका रहा है। और आज आपसे और हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन से आज जो विदा हो रहे हैं, तो इनके लिए जो है मैं विद्यालय परिवार की तरफ से
उनके जो स्वस्थ जीवन और लंबी आयु की कामना करता हूँ। दोनों ही चीजें आज महसूस हो रही है। आज एक हर्ष का विषय भी है कि हमारे पीजीटी मैथमेटिक्स श्री एस.एल. मेहता जी अपने जीवन क्या जो 35 वर्ष है सफलतापूर्वक उनका निर्वहन करने के बाद में आज ऑफिशियल तौर से केंद्रीय विद्यालय संगठन की सेवाओं से कार्यमुक्त होने जा रहे हैं। ये अपने जो उच्च अधिकारी हैं उनके साथ में कभी भी मुझे इस प्रकार का कुछ देखने को नहीं मिला। ये एक इनकी सादगी और सजगता का प्रतीक है कि अपने कार्यों को समझ करके अपने हिसाब से अपनी रफ्तार से उन्होंने उनका दायित्व का निर्वहन किया। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जो बातें बताई है ये विद्यालय जी की देन है कि सभी जितने स्टाफ मेंबर हैं सभी अपने आप को यंग फील करते हैं। तो हर व्यक्ति एक दूसरे को देख के यंग फील करता है, यानी इसलिए फील करता है जब भी कोई भी कार्य आता है सारे टीम वर्क मिलके उस कार्य को संपन्न करते हैं। तो बार वाले कहते हैं कि इस स्टाफ में क्या ऐसा है, इस स्टाफ में केवल एक ही चीज है, स्वस्थ मानसिकता। और उस स्वस्थ मानसिकता के कारण विद्यालय की जितनी भी गतिविधियां हैं बहुत अच्छी तरीके से चलती है। चाहे किसी भी तरह की विपदा आई हो बहुत अच्छी तरह से वो समाप्त हो जाती है। और विद्यालय कितना भी बड़ा फंक्शन हो, इतना बड़ा फंक्शन भी होगा वेल ऑर्गेनाइज हो जाएगा। कोई के पीछे खाली एक ही कारण है, हम सभी की स्वास्थ्य मानसिकता। जो मैंने इतने सालों में जो ऑब्जर्व किया, नए साथी आए पुराने गए बहुत सारे आते जाते हैं, सभी एकदम इस विद्यालय में घुल मिल जाते हैं। और क्या इस मिट्टी की खासियत कह दीजिए, अच्छे प्राचार्य मिले और अच्छे प्राचार्यों ने अच्छे गाइडेंस दी सभी को। और उसके कारण ये विद्यालय हमेशा उदयपुर शहर में हमेशा नाम बना रहा। और कल आप सभी लोगों को बताना है और अभी भी आना है घर पे। धन्यवाद। One thing that I feel and everybody must be feeling. ये पास में इतना पैसा है, इनको खुद पता है, इनको खुद ही पता नहीं कि इनके पास कितना पैसा है। और ये भी कहा कि मेहता जी के पास उदयपुर में इतने प्लॉट हैं, इनको नहीं मालूम कि मेरे प्लॉट कहाँ बिखरे पड़े हुए। अब ये तो मेहता जी जाने इनके पास वो क्या धन संपत्ति सब इन्हीं की है। हमने तो इनसे ये राय ली क्या मेहता जी हम भी कुछ ऐसा फाइनेंशियल कोई नुस्खा बता दो जिससे कि हम भी उस नामों पार उतर जाए। मेहता जी ने निसंदेह जो कहा था हमारे एसएन जी ने कि ये जो सलाह देते हैं वो अपने दिल से देते हैं। ऐसा नहीं यार मैं इनको सलाह दूंगा आगे बढ़ जाएगा, इनको फायदा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं सोचते। तो मेहता जी से हमने भी फाइनेंशियल एडवाइस लिया। मेहता जी बहुत अच्छी चीज़ें बताने का मुझे भी मौका मिला और बहुत अच्छी चीज़ें उन्होंने बताई है। तो मेहता जी का जो कार्यकाल है इस विद्यालय में जो मैंने अपने अनुभव से पाया है बहुत अच्छा स्वर्णिम काल इनका रहा है। और ये भी एक बहुत बड़ी बात है, बिना किसी निर्विघ्न के अगर अपने 35 साल के कार्यकाल को पार कर जाए और सुखी संपन्न अपना रिटायरमेंट ले लें, ये भी बहुत सौभाग्य की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी वैचारिक दृष्टि बहुत अच्छी होने के कारण इनको ऐसा सुख प्राप्त हुआ जो यहाँ से
गाड़ी सेक्टर 3 की तरफ यात्रा पे है पीछे पीछे Discipline. If you don't discipline when you are school or in college, you pay a heavy price in later part of your life. Discipline, like coming up in a proper way, writing properly, okay, talking properly, communicating properly, respecting people properly. This really helps a long way into your life.